Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to session number 15 of our Organizational Theory and Design course. And as you know, we are in the middle of discussing the important topic of manufacturing and service technologies. In the last session, we discussed about manufacturing technologies. We classified them in three different categories according to the technical complexity, and we identified what is unit production, what is mass production, what is continuous production, and then at the end we also talked about CIM, or the computer integrated manufacturing. We're now shifting our focus from manufacturing to service technology, and we will start this topic by first of all comparing the differences between production and service technologies in general, production and service philosophies in general. उनमें फ़र्क क्या है, हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे so that the differences are clear in your mind, and once you understand those differences, then you will also understand why the technology is different in both the cases and how those differences in philosophy and those differences in technology lead to a difference in organizational structure and organizational design. But first, let's define a few companies. Let's categorize the manufacturing and service companies. इसमें कुछ examples हम देते हैं. जो pure service companies हैं, जैसे हमने last time भी discuss किया था, pure service companies will only deliver the services to their clients, and they will include companies like airlines, companies like hotels, companies like consultants, healthcare, law firms. ये सारी की सारी companies क्या करती हैं? ये सारी कंपनीज सर्विस बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, और इसमें कहीं भी हमें प्रोडक्ट की शक्ल में कोई चीज़ नज़र नहीं आती. एयरलाइन की सर्विस, एयरप्लेन ऑब्वियसली इज़ नॉट अ सर्विस, इट इज़ अ टूल विच कैरीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पैकेज. वी कांट रियली सी वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. जिस तरह हम बिस्किट खरीदते हैं, हमारे सामने बिस्किट का डब्बा आ जाता है, लेकिन जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो शायद हम एक डिपार्टमेंट में शायद जाएं, वहाँ पर हमारी 3-4 लोगों से मुलाकात हो, शायद हम 10 डिपार्टमेंट में जाएं और हमारी 20 लोगों से मुलाकात हो. तो वी विल नेवर रियली सी दैट डब्बा विच वी सॉ इन केस ऑफ बिस्किट्स. सो एंड कंसल्टेंसी हैं, ये लॉ फर्म्स हैं, यहाँ पर भी हमें सर्विस तो मिलती है लेकिन वो सर्विस हमें नज़र नहीं आती. इसके मुकाबले में अगर हम प्रोडक्शन कंपनीज को देखें, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज या स्टील कंपनीज या ऑटोमोबाइल्स या माइनिंग है या फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, इन सब एग्जांपल्स में वी कैन सी द प्रोडक्ट. वी नो दैट इन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, फॉर एग्जांपल, द प्रोडक्ट इज a bottled or a canned soft drink. We know that in steel companies the end product sold to industry is billets, sariya. We know that automobiles will be selling cars. We know that in mining the ultimate product is refined ores. We know that in food processing plant the ultimate product is a processed food. So ये प्रोडक्शन और सर्विस में क्लियरली डिमार्केशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है. कुछ कंपनीज ऐसी हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस. फॉर एग्जांपल फास्ट फूड आउटलेट्स. अब फास्ट फूड आउटलेट्स में प्रोडक्ट बनता भी है इन द शेप ऑफ फास्ट फूड एंड इट इज ऑल्सो डिलीवर्ड विच इज अ सर्विस. या तो लोग वहां पर जो बैठ के खाएंगे दे विल बी केटर्ड. नाउ केटरिंग इज अ सर्विस, और दे विल बी डिलीवर्ड द फूड एट होम विच इज ऑल्सो अ सर्विस, विच इज डिलीवरी ऑफ सर्विस. Cosmetics. Actually, the companies which produce cosmetics are producing a tangible product, and at the same time, when that product is used in the beauty salons of those particular companies, वहाँ पर वो सर्विस बन जाता है. रियल स्टेट, वो भी इसमें भी प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है, बिकॉज when you are selling a property to someone, a property is a real tangible product, but there are many things attached with that property which you are selling in the form of a service. And stockbrokers and retail stores, they are also engaged in both product as well as service. ये तो कुछ examples थी to differentiate between production and service companies, and now we will look into some of the
philosophical differences between manufacturing and service technologies. The first difference, in fact, we have already identified, is that in manufacturing, the product is tangible. You can see the product. जैसे मैंने बिस्किट्स के डब्बे की आपको एग्जांपल दी कि आपने एक डब्बा खरीदा, उसके अंदर बिस्किट्स से लेके उनकी पैकिंग, उसके ऊपर उनकी फाइनल पैकिंग, लेबलिंग, सब कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में विजिबल, टेंजिबल, फिजिकल फॉर्म में आपके सामने मौजूद. बट यू गो टू अ डेंटिस्ट, he gives you an injection or he takes your tooth out or he performs some procedure on you. आपके सामने वो प्रोसीजर आया नहीं, तो हुआ है, आपने फील किया, बट आपके सामने नहीं आया. और आप घर जब तक आए, होपफुली आपको आराम आ चुका, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया. यू नेवर सॉ व्हाट वाज द सर्विस लाइक. यू ओनली सॉ द डॉक्टर. You saw some instruments, you saw some tools, you saw a couple of nurses, but you did not see what you saw in the case of a pack of biscuits. A pack of biscuits में आपने फिर फाइनल प्रोडक्ट तो देखा, लेकिन वो बनते हुए नहीं देखा. जबकि यहाँ डेंटिस्ट के पास जब आप गए तो आपने अपने ऊपर वो सर्विस होते हुए देखी. दैट इज अनदर डिफरेंस, दैट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द manufacturing process does not involve the customer, but in case of service, the process of production of that service is usually done in front of the customer. Like you go to a hair salon for a haircut, वो आपके सामने ही सारा होता है प्रोसेस. आप जाके बैठते हैं, you know, from the time that seat is cleaned for you till the time that you get up and that seat is cleaned for someone else, the whole process is in front of you. It involves you. You can give your feedback कि नहीं, मुझे इस नंबर से नहीं, 1 से नहीं, 2 से ट्रिम करें. बिस्किट्स बनते जब थे उसके बाद आप पता नहीं कहाँ थे. You were not involved in that process. So that is another important difference. इस सर्विस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होती. आप एक होटल में जाते हैं या आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल की किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने ऑर्डर दिया. अब वो खाना उस वक्त तो नहीं बना आपके ऑर्डर देने से पहले. इट विल बी प्रिपेयर्ड देयर एंड देन, एंड इन सम रेस्टोरेंट्स इट विल बी प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और साथ ही वो कंज्यूम हो जाएगा. आप उसको या तो उठा के घर ले आएंगे या आप उसको वहां खा लेंगे. सो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई प्रोसीजर होना है, कोई ऑपरेशन होना है, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्शन है, वो भी हो रही है और साथ ही साथ आप उसे कंज्यूम करते जा रहे हैं. So this simultaneous production and consumption is crucial because it gives you, the customer, the opportunity to be a part of that production process and to provide feedback there and then. ये बहुत ही important चीज. That is why people working in service companies, they need to have customer care or customer satisfaction value in them. Otherwise arguments शुरू हो जाएं. If they don't have that customer satisfaction value in them, so they can, they will start having arguments with customers. Obviously, that is not what we see or what is desirable to be seen in service organizations. So, वहाँ पे challenge ज़्यादा है service organizations के ऊपर because the customer is involved. अब आप एक hospital में जाते हैं, आप 7 दिन एक hospital में service लेते हैं, and you remain happy for 7 days. At the time of your discharge, आपको बेड शीट के ऊपर एक स्पॉट नजर आ जाता है ब्लड का या किसी भी चीज, एंड यू कॉल दी matron, you call the nurses, you call the doctors and you ask them what sort of service is this. या आप किसी 5-star होटल में आपको एक स्पॉट नजर आ जाता है, you will not tolerate it because you are paying the price for 5-star hotel and you will say ये सर्विस कैसी. इसलिए आप इतनी जल्दी पिन पॉइंट कर सके हैं because you are involved in that process continuously along with the employees. You are not sitting away from that process. So that is also a crucial difference. एक और difference मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में ये है, in manufacturing we can inventory the product because product is tangible. आप कैंस को, बिस्किट्स को, बोटल्स को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, शेल्फ पे रख सकते हैं. दवाइयों को, मेडिसिन को प्रॉपर जगह पर, जहाँ पर जिस तरह कंपनी ने लिखा है जिस तरह स्टोर करना है, आप स्टोर कर सकते हैं. लेकिन सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते.
फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग एन एयरलाइन और आपका लाहौर से कराची फ्लाइट जानी और आधी से ज़्यादा या आधी सीट्स उस फ्लाइट में खाली, या समझे एक सीट खाली, and the flight takes off from Lahore to Karachi, it arrives safely in Karachi. You have missed that seat forever because वो लाहौर से कराची empty थी, खाली थी. So now you cannot turn the time back. अब तो ये नहीं हो सकता वापस वो टाइम लेके आए, लाहौर जाएं, फिर उसको पुर करें और वापस आएं. वो तो मौका गया. एक रात होटल में 100 में से 20 कमरे खाली थे. You have missed those 20 empty rooms forever because you cannot store them. You cannot tell a person कि इस वक्त तो मेरे पास कमरा नहीं है लेकिन परसों था. He'll say, what can I do अगर परसों था, इस वक्त तो नहीं. तो आप तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया उसको, बिकॉज आज तो नहीं है कमरा. That is also an important difference. Has its own repercussions, has its own demands on the people working in service organization and on the culture and service and design of a service organization. Manufacturing companies are usually capital intensive in a sense that their production process is around plants and tools and equipment. इसलिए वहाँ पर ज़्यादा importance होगी machinery which produces the tangible product. Therefore, most of the expenses or most of the expenditures will be of capital nature. वो capital assets की खरीद में expense use होंगे. Whereas in services, the nature of the service is more like labor or knowledge intensive. Labor intensive है, आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सर्विस मिलती है which is dependent on the human beings. और knowledge dependency कि आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई कोर्स अटेंड करते हैं या कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको लेबर ही मिली बट वेरी रिफाइंड प्रोफेशनल लेवल सर्विस विच वी कॉल एज नॉलेज. So you can see the focus in intensity varies. In production it is capital intensity, here in services it is either labor or knowledge intensity. And another difference is that in manufacturing concerns, human resources are less important as compared to services. In services they are most important. और मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दी that it is because in service companies you, the customer, is involved directly in the process of production, in the process of production of the service and in the process of delivery of the service. Whereas in production आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे है? प्रोडक्शन में आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिटेलर से, चैनल से है, प्रोड्यूसर से नहीं. आप अगर एक फास्ट फूड फूड कैन लेके आते हैं और वो कैन ठीक नहीं है, अब घर आके खोलते हैं आप देखते हैं कि कैन खराब है, यू डोंट गो टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट कैन. मे बी दैट प्रोड्यूसर्स फैक्ट्री इज 200 माइल्स और मे बी इज सिटिंग अब्रॉड, तो आप उनके पास तो नहीं जाएंगे, आप जाएंगे रिटेलर के पास. यू विल गो टू ए रिटेलर एंड यू विल टेल हिम एंड यू विल आस्क हिम, ये आपने मुझे क्या चीज़ दी, ये तो ख़राब है. ही विल से, ओ सॉरी जी ये लॉट ठीक नहीं थी, आई विल कंप्लेन टू दी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, और वो आपको कोई और शायद वो रिप्लेस कर दे, आपको कैन नया दे. तो यू विल बी हैप्पीली बैक इफ योर कैन इज रिप्लेस्ड. If that can is not replaced, you will not be crossed or angry with the company, you will be crossed or angry with the retailer because he is facing you. In services, you are facing your client directly, there and then. इसलिए human resources की important service में ज़्यादा है. And imagine a 5-star hotel, 3 o'clock in the morning. Who is representing that hotel? 3 o'clock in the morning में रिटेल स्टोर तो मोस्टली बंद होंगे उस वक्त, प्रोडक्शन की कंपनीज मोस्टली बंद हैं, फैक्ट्रीज खुली हैं, फैक्ट्रीज में कस्टमर नहीं जाते, फैक्ट्रीज में तो एम्प्लॉयज जाते हैं. लेकिन सर्विस, होटल्स खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, एयरलाइंस खुली हैं. तो क्या यहाँ पर रातों को एमडीज बैठे, क्या टॉप मैनेजमेंट बैठी? नो. तो हु इज रिप्रेजेंटिंग दी सर्विसेज, दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस at odd hours, because odd hours में ही खुले होते हैं? Maybe the receptionist, 5-star hotel में receptionist or the people at security gate or the staff of the housekeeping department, they are representing the whole organization. They are representing the repute of a 5-star hotel in front of you.
If they are not polite with you, if they do not know their job, you will not tell them that you are inefficient. You will tell the hotel, you will tell people that this hotel is inefficient. ये 5-star hotel तो है लेकिन इसकी सर्विस 5-star की नहीं, because you won't remember their names. You will remember कि ये होटल ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया, और फलां साहब ने भी ट्रीट नहीं किया, इनकी केटरिंग भी ठीक नहीं है, इनकी हाउसकीपिंग भी ठीक नहीं है, रिसेप्शन भी ठीक. एयरलाइन में भी ऐसे ही, आप रात को जाएं दिन में जाएं, यू आर बीइंग, द एयरलाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्टीवर्ड्स, बाय द रिसेप्शनिस्ट, बाय द क्लर्क्स. तो ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सर्विस इदारों में एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा क्वालिटी की जो मेजरमेंट है, विच ए कस्टमर डज इन हिज माइंड और विच quality control engineer can do, the measurement of quality is direct in case of production. आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, आपने देखा कि एक स्क्वायर हमने इतना डब्बा बनाना है, फॉर एग्जांपल 5x3 का डब्बा बनाना, एग्जैक्ट 5x3 है या नहीं है, यू कैन मेजर दैट. बट इफ यू हैव टू गिव इंजेक्शन टू समवन एंड 2 people have to give injection to you, एक ने इधर देना है इंजेक्शन, खुदा ना खास्ता एक ने इधर देना है, एक ही इंजेक्शन अगर है, दोनों की दर्द आपको मुख्तलिफ होगी. एक साहब का हाथ हो सकता है बहुत सख्त हो, एक साहब बहुत सॉफ्ट हो, एंड यू कांट कंट्रोल दैट. तो क्वालिटी की मेजरमेंट इन केस ऑफ सर्विस इज मोर ऑन योर परसेप्शन एंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज imparting दैट सर्विस टू यू. इफ हिज बिहेवियर इज जनरली गुड विद यू, इफ ही इज पोलाइट विद यू, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप उस दर्द को इग्नोर कर. But if he is rude with you, if he does not care about your pain, if he does not listen to your story very carefully, तो फिर आपको जो थोड़ी सी भी पेन होगी इंजेक्शन में, you will not ignore it. So, the role of HR skills and the quality which is perceived in case of service organization, since it is perceived, therefore the role of HR becomes even more important. Therefore, the role of your interpersonal communication becomes even more important. Therefore, the role of your ability to convince people, or your ability to satisfy your people, or your ability to delight your customers is more important in service organization, and not to that level in production companies. Response time हमने पहले देखा. Response time manufacturing में is long. Service में response time is there, and then you don't like a soup, you will call the waiter, you will tell him, I don't like this soup. He will replace it for you. He will either change the recipe or do something. So response time is quick. इसी तरह the locale of the organization or factory or hotel, the site, is not that important in manufacturing. Manufacturing में जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, आपका ताल्लुक तो रिटेलर से. You look at the location or site of a retailer. रिटेल शॉप वहाँ हो जहाँ मुझे आसानी हो जानी. लेकिन अब आपकी तरफ से वो प्रोडक्ट बन के चाहे रहीम यार खान से आए, चाहे वो बाहर की किसी कंट्री से आए, चाहे वो लाहौर से 100 मील दूर आए, कराची से 50 मील दूर आए, इसकी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं. बट व्हेन यू गो टू अ हॉस्पिटल और अ होटल और अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, ये साइट कहाँ पे है, जहाँ से मैंने जाना है उसके क्लोज है या नहीं. तो दी लोकेशन, द साइट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन service organization. So we have seen that philosophically speaking, and if we compare the characteristics, the general characteristics of the manufacturing and service organizations, they are inherently different organizations. Or सबसे important from a management point of view, the difference is that customers are directly involved in the consumption and production of service. HR skills are highly important for the employees of service organization, and that quality in case of service is perceived, and the employees in service organizations need to have multiple skills because they are representing the whole organization in front of you, and their behavior is going to determine whether you will give a good feedback to the organization as a whole or not. अब quality का जब मैंने आपसे कहा कि perceived है, I would like to give you an example of that. Like originally when I said that quality in case of services is perceived, and I gave you the example of a patient who had spent 7 days in a hospital and he is very happy with the service. अब
क्वालिटी का जो परसेप्शन है जहां तक, वो एक बहुत ही नाजुक चीज है। फर्ज करें आप ये व्हाइट बोर्ड अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाउ इफ आई आस्क यू नाउ, व्हाट डू यू सी नाउ? अब आप में से कम लोग हैं जो कहेंगे दैट आई सी अ व्हाइट बोर्ड। नाउ मोस्ट ऑफ अस विल see and will perceive and will think that we are seeing at a black spot. Agreed or not? अब आप कहेंगे कि व्हाइट बोर्ड नहीं देख रहा हूं, मैं काला धब्बा देख रहा हूं। अब भी तो बोर्ड उतना ही व्हाइट है। I mean 99% of this board is still white. If you take this out, it becomes white again. लेकिन सिर्फ इस एक स्पॉट की मौजूदगी ने आपकी क्वालिटी की परसेप्शन बदल दी। आपने इस बोर्ड को व्हाइट बोर्ड से ब्लैक स्पॉट कहना शुरू कर दिया। आपने कहा कि इस बोर्ड का एक बोर्ड देख रहा हूं तो काला धब्बा भी, चाहे वो इतना सा था, और 99.9% आपका बोर्ड वैसे का वैसा व्हाइट था, लेकिन आपकी नजर उस धब्बे पे पड़ी। दैट इज द चैलेंज ऑफ सर्विसेज। द होल फूड इज एक्सीलेंट, बट एट द एंड जब स्वीट आप खाने लगे तो स्वीट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं थी, या स्वीट की कंसिस्टेंसी आपकी पसंद की नहीं थी। आपने कहा ये रेस्टोरेंट इज नॉट गुड। नोबडी कैन चैलेंज अ कस्टमर हु इज गिविंग अ फीडबैक ऑन द फूड, बिकॉज आप किसी का टेस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हर एक के टेस्ट के मुताबिक खाना नहीं बना सकते। तो कई लोगों को टेस्ट अच्छा लग रहा है, साथ वाली टेबल पे शायद टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो, सर्विस अच्छी लग रही, उससे साथ वाली टेबल पे शायद एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा हो। तो सर्विस में इसीलिए मल्टीपल स्किल्स की जरूरत है। क्वालिटी भी आपकी बेहतरीन हो तो साथ में डिलीवरी ऑफ सर्विस, इंटरेक्शन विद कस्टमर, फ्लाइटनेस, ऑल दीज थिंग्स मैटर इन सर्विस। So in short, service organizations are a challenge to work. मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पे आप पे चैलेंज आपके सीनियर्स का है, आपके एम्प्लॉइज का पे चैलेंज है, बट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द रियल चैलेंज इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड रिमेंबर दैट द रियल बॉस और द रियल बॉसेस आर कस्टमर्स। So in service organization you are facing really the music. अब अगर हम देखें इसी बैकग्राउंड को ज़हन में लिए हुए, इन्हीं डिफरेंसेस को ज़हन में लिए हुए, we try to look at how we design service organization. What sort of structural characteristics will we have in service organization as compared to production? हमें एक तस्वीर उभरनी हमारे ज़हन में शुरू होगी regarding the designing of service industry or service organization. पहली चीज़, we will compare the two categories of organizations according to 5 structural characteristics कह लें, या 5 organizational characteristics कह लें। Structural purely तो इनमें से 3 हैं। Number 1 is the boundary spanners. Boundary spanners आपको याद होगा, the departments which are on the periphery of an organization doing the job of being an interface between that organization and the environment, like the purchasing department or the marketing information department or R&D department। ये सारे के सारे आपके बाउंड्री स्पैनर्स हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहे हैं। सर्विस कंपनी में बाउंड्री स्पैनर्स की इतनी जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन में होती। Now if you think over it in the light of what we have just discussed, it will come clear to you कि क्यों प्रोडक्शन में बाउंड्री स्पैनर्स की जरूरत है। क्योंकि प्रोडक्शन में आप, you the company, I'm not talking about the channel, I'm not talking about the wholesalers and retailers, the production company itself is away from customers. It is, the process is such that people are not involved in the production process, people are not involved in the, they're not consuming the product in front of the makers. The feedback to the manufacturers is not as prompt and as quick and on the spot as we have seen in services. Therefore, they need departments who can substitute or departments who can fulfill this gap. इसलिए बाउंड्री स्पैनिंग की प्रोडक्शन कंपनीज में ज्यादा जरूरत है। सर्विस कंपनीज में ऑन द अदर हैंड, most of the action is happening in front of you, most of the action is happening inside your premises. You don't need to have boundary spanners to understand your consumer is all the time in front of you.
if you are running a hospital for 3 years, for example, you know your customers very well and you know what do they expect from you. And जो लोग नहीं भी आए, अटेंडेंट और रिलेटिव्स तो आते हैं, तो वो अटेंडेंट और रिलेटिव्स आपसे भी मिलते हैं, they give their comments, their feedback to you. So you don't actually need to go to society at large to conduct a survey because आपके अपने जो कस्टमर्स हैं वो आपकी खुद ही बाउंड्री स्पैनिंग कर रहे हैं, आपको कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं चाहिए. एक तो ये फर्क हुआ, बाउंड्री स्पैनिंग का रोल सर्विस में कम है, प्रोडक्शन में ज्यादा है. सेकेंड डिफरेंस इज डिसीजन मेकिंग. प्रोडक्शन में चाहे आप डिफरेंशिएटेड कंपनी भी हैं, जितना भी आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड भी है, अनलेस अंटिल इट इज यूनिट प्रोडक्शन. अगर हम मैस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर तो सेंट्रलाइज्ड है डिसीजन मेकिंग. और अगर हम कंटिन्यूस प्रोसेस की या CIM की बात कर रहे हैं तो इट इज स्टिल सेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू सर्विस, क्योंकि सर्विस में डिसीजन मेकिंग इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड. और मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आप रात 2 बजे जाते हैं एक होटल में, 5 स्टार होटल में, और आप उस होटल के फ्रीक्वेंट विजिटर हैं. The person sitting receiving you on the reception, he can decide कि yes आप frequent हमारे आने वाले हैं, या आप चेक आउट हो रहे हैं एक एयरलाइन के काउंटर पे, आप उनके frequent flyer हैं. The clerk sitting on the counter will say, oh sir, you are our frequent flyers, हम आपकी क्लास अपग्रेड कर रहे हैं. Now this is decentralization. Nobody will challenge him. Nobody will tell him, ask him कि आपने क्यों किया, क्योंकि सर्विस में इतनी अथॉरिटी है. सिक्योरिटी गार्ड ऑन अ होटल कैन स्टॉप यू, कैन टेल यू विजय नहीं आप नहीं अंदर नहीं आ सकते, यू कांट डू एनीथिंग. द MD विल प्रोबेबली टेल द सेम थिंग टू यू. तो डिसेंट्रलाइजेशन का रोल, डिसीजन मेकिंग का रोल, बहुत हद तक डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स नीचे तक आते हैं सर्विस इदारों में. इसलिए सर्विस में डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर एज कंपेयर टू एनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन कंपनी. And the third thing is formalization. The amount of written work, the amount of written procedures, the amount of bureaucracy. In service organization formalization is much lower as compared to production. Production में चाहे जितना भी differentiated product आपका हो, service के मुकाबले में आपकी formalization ज़्यादा होगी because of all the differences which we have discussed, and because in service your consumer is in front of you. When he makes a complaint, you try to correct it there and then. So you will tick or keep a very minute record. Like in production में आप production के खुद अपना data and all sorts of statistical controls which you can employ in service, but their role is much more pronounced and important in production organization. Employees की skills. If you look at the level of skills in people, तो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया है और आपको अब तक इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि सर्विस के इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनकी स्किल्स ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, मल्टी स्किल्ड उनको होना चाहिए एज़ कंपेयर टू पीपल वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन में आप अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनी की मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, यू विल प्रॉब्ली बी डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर विजिटिंग, if you are in the sales of a production company and you are visiting your clients and you know कि मैंने इनसे क्या बात करनी है, क्या प्रेजेंटेशन देनी है. और सर्विस में आज आपके पास 2 बजे रात को हो सकता है खाली हो बिल्कुल होटल, और कल हो सकता है 2 बजे रात को कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन डेलीगेट आ जाए. अब उनसे बात करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको थोड़ा मल्टीलिंग्विस्टिक भी होना पड़ेगा, थोड़ा आपको उनके कल्चर से भी बखूबी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इनको ग्रीट कैसे करना है, इनको क्या चीज़ देनी है. तो अगेन योर स्किल लेवल इज मच ब्रॉड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द स्किल लेवल ऑफ पीपल वर्किंग इन प्रोडक्शन कंपनीज. एंड द फिफ्थ डिफरेंस इज दैट ऑफ द एम्फेसिस ऑफ स्किल्स. एक तो हमने कहा कि एम्प्लॉय स्किल्स ज़्यादा चाहिए सर्विस कंपनी में एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, और दूसरी चीज़ है कि स्किल्स का जनरली फोकस कहाँ होगा, एम्फेसिस कहाँ होगा. प्रोडक्शन में यूजुअली द स्किल्स फोकस इज ऑन टेक्निकल स्किल्स, कि आपको प्रोडक्शन की टेक्निक्स आती हैं नहीं आती, आपको फाइनेंशियल टेक्निक्स आती हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं आर यू टेक्निकली स्ट्रांग इन इट और नॉट. वेयर एज इन सर्विस कंपनीज द स्किल एम्फेसिस इज ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स.
इंटरपर्सनल इसलिए क्योंकि एक तो आपने कंज्यूमर को फेस करना है, एक तो आपने कंज्यूमर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट को फेस करना है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और दूसरे इसलिए कि सर्विस में यूजुअली दी एज वी विल सी दी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन आर ऑर्गेनिक फ्री फ्लोइंग, तो उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए टीम वर्क में काम करने की। तो टीम वर्क में और फ्री फ्लोइंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में काम करने के लिए यू नीड टू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स। इसलिए द फोकस इन केस ऑफ सर्विस कंपनीज विल बी मच मोर इंटरपर्सनल स्किल्स, और प्रोडक्शन कंपनीज में वो टेक्निकल स्किल्स पे फोकस चले जाएगा। नाउ विद दैट वी मूव टू slightly different, not really different topic, but a different focus of this topic. So far we have been talking about organizational technologies, and in the case of production we discussed three types of technologies, फिर हमने service और production technologies को compare किया. So our focus has been organizational, but within organizations we have various departments. We have different departments. Like, to give an example, to make the understanding more clear, for example, you have a marketing department, you have a production department, you have an R&D department, and you have an accounts department. Let's take the example of accounts department and R&D department. क्या आपके ख्याल में इन दोनों एक ही कंपनी है, दे आर हेडेड बाय सेम एमडी, इट इज सेम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक ही कंपनी है, क्या अकाउंट्स और R&D आपके ख्याल में क्या इनका कल्चर एक जैसा होगा? इन द सेम कंपनी अकाउंट्स में फोकस क्या है? सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, करेक्ट रिपोर्टिंग, प्रिसीजन, प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज जो आप एंटर कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंसेस, बुक्स, पेपर वर्क. What is the focus here in R&D? Exchange of ideas, generation of ideas, exchange of information, working on new ideas, working on new designs, working on new options. Not much secrecy, not much confidentiality, not much paperwork as compared to accounts. So, अब अगर हम डिपार्टमेंट की डिजाइन की या डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर की या कल्चर की बात करें, तो यहां पर ऑटोमेटिकली हमें ये लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का चाहे हो, उसका डिजाइन ज्यादा मैकेनिस्टिक होगा, और R&D डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का हो, उसका अपना डिजाइन ज्यादा ऑर्गेनिक होगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजीज. नाउ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस वी आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड departments. Within an organization, departments will have different characteristics, and I have just demonstrated to you that accounts department of any company will be more mechanistic than R&D department of any company. So departments often have characteristics similar to service technology. Because departments का काम है providing services to other departments within the organization. एक rule of thumb है generally. Each department has its own focus, its own production process, its own distinct technology. बात को हम डिपार्टमेंट के डिजाइन और स्ट्रक्चर से अब लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, एंड टेक्नोलॉजी से वी विल रिलेट इट बैक टू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर. सो फॉर व्हाट वी हैव सेड इज दैट ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन फोकस. अकाउंट्स का फोकस कंट्रोल है, R&D का फोकस बिल्कुल कंट्रोल नहीं, R&D का फोकस इनोवेशन. अकाउंट्स का प्रोडक्शन प्रोसेस है अपना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें डेबिट क्रेडिट एंट्रियां की जाती हैं, बुक्स रखी जाती हैं, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ an R&D department where ideas are exchanged, information is exchanged, discussions are held, and new design and are explored, and you can see प्रोडक्शन का फोकस तो फर्क है. इसी तरह इनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होगी. टेक्नोलॉजी हमने पहले कहा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट. अब अकाउंट्स में जो इनपुट्स आपकी क्या हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज योर इनपुट,
डिफरेंट वाउचर्स आपके इनपुट हैं, उन इनपुट को आपने लेजरों के ऊपर ला के रिपोर्ट्स की शक्ल दे देनी। सो आप नोट करें कि अकाउंट्स में आपकी जितनी भी इनपुट वेरी करेंगी, वाउचर्स चाहे कितनी भी तरह के होंगे, उनको ट्रांसफर करने का प्रोसेस इनटू लेजर्स एंड रिपोर्ट्स विल बी वेरी सिमिलर। सो अकाउंट्स में हम देखेंगे कि काफी आपकी टेक्नोलॉजी रूटीन होगी, वेयर एज इन R&D we cannot anticipate such a routine, we cannot imagine or we cannot conceive such a routine। वहां पे तो कोई बुक कीपिंग आपने नहीं करनी ना कि आइडिया नंबर 1 डेबिट है और अब मैंने बना लिया प्रोडक्ट तो अब ये क्रेडिट हो गया। वहां पर तो प्योरली इट इज फ्री फ्लोइंग एंड फ्लूइड। तो द टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ R&D, टेक्नोलॉजी तो वहां पर भी है ना, R&D की इनपुट क्या है? आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। What is the output of R&D? It can be again ideas, or it can be a product, but product will not be manufactured by R&D. This idea will be given to design, and design will then design it, give it to production. So you can see that the inputs and outputs of R&D are much more ambiguous or less clear than the inputs and outputs of accounts department. और accounts department में technology routine थी। यहां पर क्योंकि इनपुट्स और आउटपुट एम्बिग्युअस हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी रूटीन नहीं होगी। इस बैकग्राउंड को ज़हन में लिए हुए वी नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डिटर्मिनिंग डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजीज। और डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी को हम मेजर करने के लिए एक तो मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में पैदा किया है R&D और अकाउंट्स की एग्जाम्पल से। अब हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद रिफाइन करेंगे। बेसिकली दो एलिमेंट, एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम इस डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी को असेस करते हैं कि किस डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी क्या है, और दो एलिमेंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये फ्रेमवर्क घूमता है या जिनकी बेस पे ये फ्रेमवर्क बना है। इनमें से एक एलिमेंट का नाम है वैरायटी, अभी हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, और एक एलिमेंट का नाम है एनालाइजेबिलिटी। सो द टू elements of variety and analyzability provide us with a framework on the basis of which departmental technologies are, I don't want to use the term decided, but on the basis of which departmental technologies are rationalized, जिसकी बेस पे ये हमारे ज़हन में आता है कि इस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो फ्री फ्लोइंग होगा, इस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर रिजिड होगा। Now let's try to understand what do we mean by these two terms of variety and analyzability. And I think we will spend today's session in trying to elaborate this difference of variety and analyzability. And in our next session, we will then apply this framework and we will see that what technologies result from the application of these two variables or these two elements. Now variety here in this case is actually task variety. अगर आप ये कहना चाहें कि देखें जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ या आप काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में वैरायटी ज़्यादा है या कम है काम की, तो इनफैक्ट वी विल हैव टू लुक एट द टास्क वैरायटी विच इज़ प्रेजेंटेड टू अस। रोज़ हम जाते हैं काम के लिए, कोई सुबह जाता है, कोई दोपहर में जाता है, कोई रात को जाता है, कोई 4 घंटे के लिए जाता है, कोई 6 घंटे के लिए जाता है, कोई सारे दिन के लिए जाता है। आप जब रोज अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको कितनी दफा अनएक्सपेक्टेड और नोवेल इवेंट्स से साबका पड़ता है और कितना आपको रूटीन इवेंट्स से साबका पड़ता है। टास्क वैरायटी तो यही काम आपने जो करना है वो, फॉर एग्जांपल आप एक कैमरामैन है, आप एक कैमरामैन है, अब आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने जो साहब बैठे हैं वो कौन है। आपका काम है रिकॉर्ड करना, लाइट्स ठीक हों, प्रोड्यूसर से आपकी कोऑर्डिनेशन हो, आप अपना काम कर रहे हैं। इस काम में शायद इतनी वैरायटी ज़्यादा नहीं है बिकॉज टास्क रोज आपके एक जैसे ही हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई रोज नॉवल सिचुएशन नहीं आती।
So in this case, we will say that variety of the task or variety, overall variety is low. अगर हम अकाउंट्स वाली एग्जांपल लें तो उसमें भी वैरायटी लो है, क्योंकि एक अकाउंट्स में जो लोग बैठे हैं उन्हें अपना अपना काम पता है. जो लोग लेजर पे बैठे हैं, दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू. जो लोग वाउचर्स को फाइलों में लगा रहे हैं और कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. और जो उनसे ट्रायल बैलेंसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. और जो उनकी बेस पे रेशियो एनालिसिस और इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं. उनके काम में रोज रोज की कोई नई चीजें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या नॉवल इवेंट्स नहीं आ रहे. सो इफ द टास्क वैरायटी इज लो एंड इफ पीपल डोंट encounter unexpected and novel events, then we can say that the variety of their department or variety of the process which the department is using is low. R&D में हम ये नहीं कह सकते. R&D में एक तो आपके पास टास्क वैरायटी बहुत, जरूरी नहीं है कि आप रोज एक ही काम करें. हो सकता है एक दिन आप कंप्यूटर पे बैठे एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और नेक्स्ट डे शायद आप क्वालिटी कंट्रोल वालों के साथ लेबोरेटरी में हैं, या आप किसी और कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप किसी और जगह बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं आइडियाज की. तो आपका काम क्या होगा एग्जैक्टली? इट इज डेली, ऑन डेली बेसिस. यू कैन नॉट foresee it, you cannot expect it, because your work involves unexpected and novel events on nearly daily basis. तो R&D में जब हम देखेंगे वैरायटी के एलिमेंट को, तो हम ये कहेंगे that the variety in R&D is high. एक और तरीका जो वैरायटी को असेस करने का है, डिपार्टमेंटल वैरायटी या वर्क वैरायटी को असेस करने का ये तरीका है कि आप लोगों से कोई 2-3 सवाल पूछें, और वो सवाल किस नौइयत के होंगे वो मैं अर्ज कर देता हूं. लाइक, टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू से योर वर्क इज रूटीन? फॉर एग्जाम्पल, आप काम करते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछें, कितनी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि मेरा काम रूटीन का काम. दूसरा सवाल ये कि डू मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम और इश्यूज द सेम वे? जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है काम में, तो क्या उसके सोल्यूशन एक ही तरह के हैं या वो फर्क सोल्यूशन? क्योंकि अकाउंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है काम में, ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक हो गई, डेबिट क्रेडिट की एंट्री में मिस्टेक हो गई, वाउचर्स की एंट्री में मिस्टेक हो गई, तो उसका एक सेट प्रोसीजर है कि आप किस तरह वापस जाके ट्रैक पे चल के आप गलती को पकड़ेंगे और ठीक कर लेंगे. तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो यू सॉल्व इट इन ए नोन एंड ट्रेडिशनल वे. लेकिन अगर आप एक ऐसी हॉस्पिटल में हैं या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो फॉर एग्जांपल R&D का डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है कि नई चीज करते हुए, तो अब आपको पास तो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन भी नया होगा. सो जितने वो सॉल्यूशंस स्टैंडर्डाइज होंगे उतनी काम की वैरायटी कम होगी, और जितने वो सॉल्यूशंस नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, नॉवल होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, उतनी ही वैरायटी भी ज्यादा होगी. एंड ऑल्सो you can ask people, are members performing repetitive activities in doing their job or not? अगर वो repetitive activities कर रहे हैं तो फिर task variety on the whole will be low. So हमें variety से ही समझ आई कि it is task variety and it is the presence of unexpected and novel events in your job. अगर वो कम है, नॉवल इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, आप एक ही तरह का काम रेपिटेटिव रोज करते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट की वैरायटी लो है. अदरवाइज वो वैरायटी आपकी हाई. दूसरी चीज जो हमने दूसरा एलिमेंट लिखा है वो है एनालाइजेबिलिटी. एनालाइजेबिलिटी इज व्हेन द प्रोसेस इज एनालाइजेबल. वर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू मैकेनिकल स्टेप्स and participants can follow a set pattern to solve problems. For example, accounts की मैं एग्जांपल देता हूँ. अकाउंट का काम एक्चुअली क्या है, एंड पे एंड प्रोडक्ट क्या है? रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना. तो क्या हम इस काम को एनालाइज कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होंगी तो हम रिपोर्ट से ये चीज एनालाइज कर लेंगे. कुछ भी जो हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, चाहे हम उस काम को ही एनालाइज करना चाह रहे हैं कि काम अकाउंट्स का ठीक हुआ है या नहीं हुआ, वी कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स व्हिच आर जनरेटेड. बट कैन वी एनालाइज द वर्क ऑफ आवर R&D?
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज इट, बिकॉज हो सकता है R&D ने अपेरेंटली साल भर में कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने एक इस तरह के 3 या 4 आइडियाज जनरेट कर दिए हों जिनके ऊपर प्रोडक्शन या जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, और जिसकी वजह से शायद कंपनी नई राहों में डाइवर्सिफाई करना शुरू हो जाए। तो इसलिए R&D के काम को हम एनालाइज नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसकी इंपैक्ट्स आर वेरी लॉन्ग टर्म एंड इंपैक्ट्स आर हेयर एंड देयर। प्रोडक्शन का अपना काम, रूटीन रिपोर्ट्स बन गई, फाइन, एनालाइज भी हो गई, ठीक बनी या नहीं हुई, तो पूरा का पूरा सेगमेंट आप काम का ए से लेके जी तक आपके सामने है। अकाउंट्स में R&D में नहीं है, लोगों के जहन में क्या है, उन्होंने उस डिस्कशन में जो डिस्कस किया वो तो सामने आ सकता है, लेकिन उस डिस्कशन ने उनके जहन में क्या चेंजेस क्रिएट की जिससे प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और इनोवेशन बदलेगा, वो हमारी नज़र में नहीं आती। इसलिए R&D के काम को एनालाइज करना मुश्किल है। तो इन दिस केस वी विल से दैट एनालाइजेबिलिटी इज हाई इन केस ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड लो इन केस ऑफ R&D डिपार्टमेंट। और वैरायटी का भी हमने ये कहा था कि वैरायटी लो थी अकाउंट्स के केस में और हाई थी R&D के केस में। नाउ we presented 3 or 4 questions to assess variety of a department's work. We can also ask certain questions to assess the analyzability of a department work, like to what extent is there a clearly known way to do the major types of work you normally encounter. कि अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, you know that this is the known way. ये जब यहाँ तक मैं आ जाऊँगा तो उसके बाद मैंने इस डेटे को इधर ट्रांसफ़र करना है और फिर मैंने लेजर पे लेके जाना है और फिर फॉर्मूलाज पहले से मौजूद हैं, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। तो एनालाइजेबिलिटी हेयर इज हाई। R&D में कोई तरीका नहीं है कि आप एक क्लियरली नोन वे से सोचें या ना सोचें। टू व्हाट एक्सटेंट इज देयर एन अंडरस्टैंडेबल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स that can be followed in doing your work. Again, if you can break down your work into steps, तो तभी सीक्वेंस बनेगी ना। तो अगर तो आपका काम मैकेनाइज्ड है, रूटीन है, लाइक फॉर एग्जांपल अब हम R&D और अकाउंट्स के फोकस को चेंज करते हैं ताकि हम कोई और बात, कोई और एग्जांपल दे सकें। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और आपका काम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में है, आप रिकॉर्ड्स रखते हैं, मरीजों की फाइलों के रिकॉर्ड रखते हैं। अगेन आपका काम एक सीक्वेंशियल काम है, आपको पता है डिस्चार्ज के बाद फाइलें मेरे पास आएंगी, उनमें से ये फ्रंट पेज की इंफॉर्मेशन मैं कंप्यूटर पे टाइप कर लूँगा, बाकी की जो चीज़ें हैं उनको मैं रिपोर्ट्स को अलग करूँगा, इन्वेस्टिगेशंस को अलग करूँगा, फलां चीज़ को अलग करूँगा, उनको अपने अपने बॉक्सेस में डाल दूँगा। ये तो काम सीक्वेंस वाला बन गया आपका। लेकिन अगर आप नर्स हैं और आप आउट पेशेंट में या ऑपरेशन थिएटर में या वार्ड में काम करते हैं, तो आपका काम एनालाइज नहीं हो सकता, बिकॉज यू माइट बी ट्रीटिंग टुडे अ केस विच इज अ केस ऑफ निमोनिया विच डिमांडेड अ वेरी डिफरेंट नर्सिंग टेक्निक और नर्सिंग स्किल्स, एंड टुमारो यू माइट बी हैंडलिंग अ केस ऑफ एड्स विच नीड्स एंटायरली डिफरेंट नर्सिंग स्किल्स एंड नर्सिंग एटीट्यूड। तो आपका काम एनालाइजेबल नहीं। प्लस आपने रिपोर्ट बना दी, पढ़ने वालों ने पढ़ ली, उसको एनालाइज कर लिया, लेकिन पेशेंट, आप एक नर्स के काम को एनालाइज कर सके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मे बी ही डज नॉट इवन अंडरस्टैंड कि जो नर्स आ जाती हैं हर घंटे आधे घंटे के बाद करवट मुझे दिला देती हैं, इसका मुझे फायदा क्या है। मे बी ही टेक इट एज अ बर्डन, बट इन रियलिटी हिज होल ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दोज करवटें विच द नर्सेज आर गिविंग, बिकॉज इफ दे डोंट देन बेड सोर्स बन जाए। तो यू सी द एनालाइजेबिलिटी ऑफ वर्क इज मच लो in this case as compared to the man sitting in the records department of a hospital. फिर आप पूछ सकते हैं, to do your work, to what extent can you actually rely on established procedures and practices? वही बात है कि अगर तो आपका काम steps में, sequences में आ सकता है, if it is arrangeable into segments, तो फिर तो ठीक है, आप established procedures पे और practices पे rely कर सकते हैं। Like you are riding a cycle, simple cycle. अब आप साइकिल जब चला रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा जो काम है इसमें मैंने पैडल्स पे पैर मारने और बैलेंस रखना है, रिलायबल एस्टेब्लिश प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस। बट इफ यू आर
flying an airplane. वहाँ पर हालात, in spite of all the computer controls and all the terminals which are in your hand and all the control, your work does not depend on established procedures and practices, because हो सकता है आप computer system fail हो जाए, खुदा ना खास्ता engine fail हो जाए, weather खराब हो जाए, radar जो नीचे control tower वाले हैं वो mistake कर दें. So your work does not depend on established procedures कि आप वही रोज करते रहें and you will be guaranteed that it will be a safe flight. No, it is not like that. So we will stop our major discussion which we have done today, and in the remaining time जो हमारे पास 2 या 3 मिनट हैं उसमें हम recapture करेंगे हमने आज क्या डिस्कस किया. Today we moved from manufacturing to service technology, and first of all we highlighted the main differences between a manufacturing concern and a service concern, and we highlighted that there are philosophical differences between the two. Then we identified what are service concerns, what are product concerns, and what are both service and production concerns. And then we moved into the service technologies. But before that, after building that background, we moved into departmental technologies. Because when we are designing an organization, departments are part of that organization. In fact, an organization structure अगर हम देखें, तो organization is a collection of its departments. So it is crucial to understand that each and every department of or within the same organization can have different structure and can have different technologies. और ये किस चीज़ पे मुनहसर है और किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ये हमने 2 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए. अभी हमने उस फ्रेमवर्क की बात नहीं की क्योंकि अभी हमने वो फ्रेमवर्क ड्रॉ नहीं किया. अभी हमने उस फ्रेमवर्क के मुताबिक और डिपार्टमेंट्स की टेक्नोलॉजीज़ को डिटर्मिन नहीं किया, लेकिन हमने उस फ्रेमवर्क की बेसिस को डिस्कस कर लिया है. And at the basis, at the heart of that framework lies 2 elements of variety and analyzability. Variety हमने देखा कितना आपका काम टास्क में वैरायटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप अनएक्सपेक्टेड और नोवल चीज़ें आपके काम में इन्वॉल्व हैं. और एनालाइजेबिलिटी में हमने ये देखा कि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो काम है, जब वो पूरा हो जाता है तो क्या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ. क्या आप उसको पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में सीक्वेंस में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. So depending on these 2 elements of variety and analyzability, we will continue to discuss the departmental technologies in our coming session, and we will use that framework and we will see that the resultant there will be 4 resulting technologies, and they will have different implications on the design and structure of each department. With that, I will say Khuda Hafiz till next time. Thank you.